Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Good morning to all dear students. How are you students? We hope you all are fine and you're enjoying your studies. Your study is going excellent. We hope so that you people are enjoying your online classes and get the benefit from these online classes. We hope so that these classes are very much beneficial for your studies, for your future betterment, and these lectures will be helpful in your exams. Okay, now students, in the today's class we are going to start the chapter 4, reproduction. It is a part of the functional biology, second year biology, botany. Now our today's topic is the sexual reproduction. As we know that in the plants there are two types of the reproduction. First one is the asexual and other one is the sexual reproduction. Right? Now the question is arise, what is reproduction? Okay, what is reproduction? Now give me the answer please. Yes, very good. The process through which organisms produce young ones of their own kind to maintain their species are called reproduction. That's good. Now there are the two types of the reproduction. First one is the asexual reproduction and other one is the sexual reproduction. Now what happened with the plants? Plants में reproduction asexual भी होती है और sexual भी होती है. Because plant having the two different types of the parts. First one is the vegetative parts like root, stem, leaves. Right? जितने भी parts होते हैं plant के, root, stem, leaves, shoots, these all are the vegetative parts. Whereas flower is the reproductive part of the plant. Good. Right students? So there are the two different types of the reproduction, asexual and the sexual. Sexual reproduction may be take place by the help of the spore formation, by the help of the fission, budding, regeneration, fragmentation. Right? फ्रेगमेंटेशन के अलावा प्लांट्स में जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होती है, यानी प्लांट्स के जो वेजिटेटिव पार्ट्स अभी आपको बताए कौन से हैं, लीफ, स्टेम, रूट्स, बल्ब्स, ठीक है, ट्यूबर्स. राइट? ये जितने भी पार्ट्स हैं प्लांट्स के, ये वेजिटेटिव पार्ट्स हैं. इनके थ्रू जितनी भी रिप्रोडक्शन होगी दैट इज कॉल्ड अ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन. राइट? नाउ द सेकेंड टाइप ऑफ द रिप्रोडक्शन इज द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. Now the question is arise, what is sexual reproduction? Okay girls? Our today's topic is the type of sexual reproduction in the plants. Plants में कितनी तरह की sexual reproduction होती है? Because in the asexual reproduction only the single plant is involved. सिंगल प्लांट asexually रिप्रोडक्शन का फंक्शन परफॉर्म कर सकता है. बिकॉज asexual रिप्रोडक्शन में एज वी नो के हमें वेजिटेटिव पार्ट चाहिए. प्लांट्स हैं या तो स्पोरिफिकेशन करनी है, स्पोर प्रोड्यूस करना है, स्पोरुलेशन करनी है, या फिर प्लांट्स ने फ्रेगमेंटेशन करनी है, बडिंग करनी है, या फिर उसकी फ्रेगमेंटेशन के साथ साथ बडिंग हो जाएगी, फ्रेगमेंटेशन हो जाएगी, फिजिंग का प्रोसेस हो जाएगा, या फिर उसकी कटिंग कर हम उसको फर्दर ग्रो कर सकते हैं. राइट स्टूडेंट्स? जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में टू डिफरेंट पेरेंट्स आर इन्वॉल्व. वन इज द मेल प्लांट एंड अदर वन इज द फीमेल प्लांट. राइट? और टू डिफरेंट ऑर्गन्स आर इन्वॉल्व, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एंड द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन. Right students? These reproductive organ may be present in the same plant, in the same flower, or they may be present in the different flowers. Right? Some flowers are the bisexual flowers and some flowers are the unisexual flower. कुछ plants के जो flowers होते हैं वो bisexual होते हैं. जब bisexual plant होते हैं means monoecious plant. Right? आप लोगों ने याद रखना है, जब bisexual flowers होते हैं तो उनके पास एंड्रोशियम भी मौजूद होता है, गाइनोशियम भी मौजूद होता है. When they having both the sexes in the same plants, both the sexes live in the same plant, then plant is called the monoecious plant. Right students?
क्या कहते हैं हम ऐसे प्लांट को? मोनोइशियस प्लांट कहते हैं। लेकिन अगर दो डिफरेंट तरह के ऑर्गन्स, फॉर एग्जाम्पल मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, एंड्रोशियम फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, गायनेशियम, दे लिव इन दी डिफरेंट प्लांट्स, डिफरेंट फ्लावर ऑफ द प्लांट्स, डिफरेंट फ्लावर्स में अगर ये मौजूद होते हैं गायनेशियम एंड एंड्रोशियम, तो देखा जाए तो कितने प्लांट्स हो गए? 2 डिफरेंट प्लांट्स हो गए, राइट? और इनके हर एक फ्लावर के पास कितने सेक्सेस हैं? ओनली हैविंग द सिंगल सेक्स। तो प्लांट इज कॉल्ड डाइशियस प्लांट, राइट? प्लांट को क्या कहा जाएगा? प्लांट यूनिसेक्सुअल फ्लावर है और डाइशियस कहलाएगा। डाइशियस क्यों कहलाएगा? क्योंकि प्लांट के हर फ्लावर पर एक सेक्स मौजूद है। तो दोनों सेक्सेस फॉर द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कितने फ्लावर्स पे मौजूद है? 2 डिफरेंट फ्लावर्स पे मौजूद है। तो 2 डिफरेंट रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के लिविंग स्पेस कितना है? तो डिफरेंट जगहों पर है। तो हम ऐसे प्लांट्स को क्या बोलते हैं? हम कहते हैं डाइशियस प्लांट, राइट स्टूडेंट्स? ओके स्टूडेंट्स, व्हाट इज द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन? Sexual reproduction is that type of the reproduction in which 2 parents are involved, right? The type of the reproduction in which fusion of the gametes, sperm and ovum takes place and 2 parents, male and the female, are involved is termed as sexual reproduction. Is that clear? Okay, good. Sexual reproduction in the flowering plants involves the production of the male and the female gametes, the transfer of the male gametes to female ovule in a process called the pollination. After the pollination occur the fertilization. After the fertilization happens, ovules grow into seed within a fruit, right? So this is the complete process of the sexual reproduction. Sexual reproduction का process क्या है? Flowering plants में male and female gametes fused होते हैं, ठीक है? अच्छा, होता क्या है कि फीमेल, क्योंकि ये जो रिप्रोडक्शन होती है हायर क्लास ऑफ द प्लांट में हिट्रोगैमस होती है। फीमेल गैमीट्स अपनी जगह पर ही रहता है, मेल गैमीट्स उस तक आते हैं। कैसे आते हैं? बाय द डिफरेंट वेज, एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड द पॉलिनेशन। पॉलिनेशन के कितने तरीके हैं? पॉलिनेशन के बाय विंड हो सकती है, बाय वाटर हो सकती है, बाय एनिमल्स होती है, बाय द टचिंग ऑफ द पीपल्स हो सकती है, ठीक है? और इंसेक्ट्स कर सकते हैं। इंसेक्ट्स के जो फीदर्स होते हैं या उनके जो छोटे छोटे विंग्स लगे हुए होते हैं उसके ऊपर भी पोलन ग्रेन्स अटैच हो जाते हैं और फिर वो फीमेल के ओव्यूल तक पहुंच जाते हैं, ठीक है? गायनेशियम के स्टिग्मा तक पहुंचने में कामयाब हो जाते हैं। सो ये जो ट्रांसफरिंग का प्रोसेस है दैट इज कॉल्ड द पॉलिनेशन। पॉलिनेशन के बाद जो पोलन ग्रेन है वो प्रोड्यूस करता है जर्म ट्यूब, और जर्म ट्यूब के जरिए होती है फर्टिलाइजेशन, और मेल गैमेट फीमेल गैमेट दोनों फ्यूज होते हैं। प्रोसेस कहलाता है फर्टिलाइजेशन। उस फर्टिलाइजेशन के रिजल्टेंट में ओव्यूल फॉर्म होता है एंड द मेच्योर ओव्यूल कन्वर्टेड इनटू द सीड, और सीड क्या होता है? दैट इज एक्चुअली द बेबी प्लांट, right? And seed is enclosed inside the fruit, inside the ovary, and ovary ultimately converted into the fruit. Is that clear to all of you? Okay. Now there are some important features for the sexual reproduction. First one is the 2 parents are involved, right? 2 parents होंगे तो sexual reproduction होगी. Second is the gamete formation take place. Gametes का बनना बहुत जरूरी है, और गैमेट्स कैसे बनते हैं? बाय द प्रोसेस ऑफ मियोसिस सेल डिवीजन। इज दैट क्लियर? बाय द प्रोसेस ऑफ मियोसिस सेल डिवीजन। नेक्स्ट इज द फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस। जब गैमेट्स बन जाएंगे तो इन गैमेट्स का फ्यूजन होना बहुत जरूरी है, एंड द फ्यूजन ऑफ द 2 डिफरेंट गैमेट्स इज कॉल्ड द फर्टिलाइजेशन। दिस प्रोसेस इज स्लो एंड द लेंथी प्रोसेस, राइट स्टूडेंट्स? नेक्स्ट फीचर इज द वेरिएशन अकर, ऑफस्प्रिंग्स आर डिफरेंट फ्रॉम द पेरेंट्स। वेरिएशन होती है क्योंकि गैमेट्स 2 डिफरेंट गैमेट्स आर कॉपुलेटेड, 2 डिफरेंट गैमेट्स आर इन्वॉल्व, 2 डिफरेंट पेरेंट्स आर इन्वॉल्व। तो सम ऑफ द मेल कैरेक्टर्स, सम ऑफ द फीमेल कैरेक्टर्स, जो न्यू वन होता है, न्यू जनरेशन में जो लिविंग ऑर्गेनिज्म फॉर्म्ड होते हैं, दे सम हैविंग द मेल प्रॉपर्टी, दे सम हैविंग द फीमेल प्रॉपर्टी। तो दोनों का मिक्सिंग होकर क्या बन जाएगी? वेरिएशन क्रिएट हो जाएगी। सो द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक इंपॉर्टेंट फीचर क्या है कि वेरिएशन अकर इन द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन।
genetic variation also takes place. That's why variation occur in the new living organism, right? Genetical जो वेरिएशन होती है वो क्यों होती है? बिकॉज गैमीट्स हैविंग द डिफरेंट टाइप ऑफ द जेनेटिक प्रॉपर्टीज, जेनेटिक मटेरियल उनके पास मौजूद होता है. जब दो डिफरेंट मेल एंड द फीमेल गैमीट्स फ्यूज होते हैं तो मीन्स दैट दो डिफरेंट जेनेटिक मटेरियल फ्यूज होते हैं, तो इनकी आपस में प्रॉपर्टी एक्सचेंज होती है, राइट? उसको क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं क्रॉसिंग ओवर. ड्यू टू द क्रॉसिंग ओवर, जिसमें जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर होता है, because of the crossing over, variation takes place during the sexual reproduction. Is that clear to all of you? Okay. Now students, how many types of the sexual reproduction? In the plants, sexual reproduction takes place by the following methods. First one is the isogamy. Second one is the anisogamy. Third one is the oogamy. And the fourth one is the heterogamy. Right? Isogamy, anisogamy, oogamy and the heterogamy. These are the types of the sexual reproduction in the plants. Plants में जब plants sexually reproduce करते हैं तो वो 4 different ways में अपने इस sexual reproduction के function को perform करते हैं. या तो वो आइसोगैमेट्स बनाते हैं, या फिर वो डिफरेंट तरह के गैमीट्स बनाते हैं, या फिर वो oogamous होते हैं, या फिर वो heterogamous sexual reproduction perform करते हैं. Is that clear? Now we have to discuss all these 4 kinds of sexual reproduction in detail. Okay? Now first one is the isogamy. Iso means the same and gamy means the fusion of the gametes. Right? तो किस तरह के gametes होंगे? These gametes are identical. These are similar. Iso means the same. Right, students? So the simplest type of the sexual reproduction in which 2 morphologically, physiologically identical gametes, similar gametes take part in the fertilization to produce the zygospore, which then developed into the new plant, is called the isogamy. Right, students? एक जैसे गैमीट जो कि फिजियोलॉजिकली, मॉर्फोलॉजिकली आइडेंटिकल हो, सिमिलर प्रॉपर्टीज हो, सिमिलर दिखने में भी हो, अगर वो फ्यूज होते हैं तो प्रोसेस क्या कहलाता है? प्रोसेस कहलाता है आइसोगेमी. इट इज ऑल्सो नोन एज अ कॉन्जुगेशन विच मीन्स मैरिजेस ऑफ द इक्वल्स. राइट? एग्जाम्पल, दिस प्रोसेस अकर इन द अल्जी एंड द लोअर क्लास ऑफ द प्लांट. जो अल्जी होते हैं और लोअर क्लास ऑफ द प्लांट्स होते हैं उनमें ये प्रोसेस होता है. हियर यू कैन सी इन द पिक्चर दैट 2 different types of the gametes, 2 different types of the plus strand and the minus strand can fuse. The process is called the isogamy. 2 different gametes are fused here, having the gametes flagella, but both are identical, similar morphologically and physiologically. When these gametes are fused together, then the process is called the isogamy. Is that clear to all of you? Okay. Now what is anisogamy? An means not, iso means same. जब गैमीट्स एक जैसे ना हो anisogamy कहलाती है. anisogamy. anisogamy. An means not, iso means same, and gamy means the different gametes which fuse together. Right? So anisogamy किस तरह की फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस है जिसमें डिफरेंट तरह के गैमीट्स फ्यूज होंगे. They take part in the fertilization to produce the zygospore, which then developed into the new plant. This process is called the anisogamy. Right, students? Now the oogamy, the type of the sexual reproduction in which flagellated motile sperm fertilize with non-motile egg to produce a diploid zygote, which then developed into the new individual, is called the oogamy. oogamy एक ऐसी रिप्रोडक्शन की टाइप है जिसमें जो एग होता है वो नॉन मोटाइल होता है एंड लार्ज इन देयर साइज, बड़े साइज का होता है, बिग इन साइज होता है, और कैसा होता है? नॉन मोटाइल होता है. जबकि स्पर्म जो होता है यानी मेल गैमीट जो होता है वो मोटाइल होता है, हैविंग द फ्लेजिला एंड हैविंग द एबिलिटी टू मूव, टू लोकोमोट. ठीक है? क्या एबिलिटी होती है उसके पास? हैविंग द एबिलिटी टू मूव एंड लोकोमोट.
लोकोमोशन की एबिलिटी होती है बिकॉज ऑफ द फ्लैजिला। फ्लैजिला की हेल्प से वो अच्छे से स्विम कर सकता है, अच्छे से एग तक पहुंचकर एग को फर्टिलाइज कर सकता है। ये प्रोसेस क्या कहलाता है? ये प्रोसेस oogamie कहलाता है। इट इज द एग्जाम्पल ऑफ द फंजाई, algae। नॉर्मली ये oogamie जो होती है ये नॉर्मली तो फंजाई का कैरेक्टरिस्टिक है, इसके अलावा algae में भी होती है। ठीक है, तो oogamie कौन सा प्रोसेस है जिसमें बिग साइज का एग होता है जो कि नॉन मोटाइल होता है, और स्मॉल साइज के स्पर्म्स होते हैं जो कि मोटाइल होते हैं बिकॉज ऑफ द फ्लैजिला। अब स्पर्म क्या करता है? एग को फर्टिलाइज कर देता है। प्रोसेस कहलाता है oogamie। इज दैट क्लियर? एग्जाम्पल क्या है हमारे पास? algae एंड द फंजाई। ओके, हियर यू कैन सी इन द पिक्चर दैट egg is the large in size whereas the sperm is small in size and also having the flagella, right? Now the next is the heterogamie. What is heterogamie? Hetero means the different and gamete means the different type of the gametes, fusion of the gametes, right? Now the successful type of the sexual reproduction in which two morphologically and physiologically different gametes fuse together, right? कौन से gametes fuse होंगे? जो कि morphologically भी different हैं and physiologically भी different हैं, वो gametes fused होंगे और इनका फ्यूजन की वजह से इनका जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज होगा और न्यू वेरिएशंस फॉर्म होंगी। राइट स्टूडेंट्स, अभी जो मॉर्फोलॉजिकली फिजियोलॉजिकली जो डिफरेंट गैमेट्स हैं वो किस तरह के होंगे? नॉन फ्लैजिलेटेड लार्ज साइज फीमेल गैमेट विच इज एक्चुअली द ओवम और द एग सेल फ्यूज विद द स्मॉल साइज फ्लैजिलेटेड मेल गैमेट विच इज एक्चुअली द स्पर्म, जिसके पास फ्लैजिला होगा। राइट, फ्लैजिलेटेड मेल गैमेट्स फ्यूज होंगे और इनके फ्यूजन के बाद फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होगा विच इज एबल टू प्रोड्यूस द जाइगोट विच देन डेवलप्ड इनटू द न्यू प्लांट। अब जो जाइगोट बनेगा वो जाइगोट जाइगोस्पोर बना देगा, देन अल्टीमेटली क्या होगा? ओव्यूल बन जाएगा, देन सीड बन जाएगा और सीड के पास एबिलिटी होती है कि वो एक न्यू प्लांट बनाने की एबिलिटी रखता है। राइट स्टूडेंट्स, सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड द heterogamie. Is that clear to all of you? The successful type of the sexual reproduction in which two morphologically and physiologically different gametes fuse together. Non-flagellated large size female gamete fuse with the small size flagellated male gamete to produce zygote which then developed into the new plant. This process is called the heterogamie. Right? इसमें किस तरह के gametes बनते हैं? Heterogamous formed होते हैं। राइट स्टूडेंट्स, हीट्रोगैमीट्स बनते हैं। ठीक है जी, प्रोसेस क्या कहलाता है? हीट्रोगैमी कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल इन द हायर क्लास ऑफ द प्लांट सच एज द ब्रायोफाइट, राइट, ब्रायोफाइट में हीट्रोगैमी होती है, एंजियोस्पर्म जिम्नोस्पर्म में किस तरह की रिप्रोडक्शन का प्रोसेस होता है? हीट्रोगैमी होती है। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ओके, द क्वेश्चन इज अराइज व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द हीट्रोगैमी एंड द oogamie, राइट? सो हीट्रोगैमी एंड oogamie ऑलमोस्ट the same but 20% having the difference, right? Actually heterogamie is the state of the conjugating gametes that are different in the size, structure and the function, while oogamie is a form of the anisogamy, right, in which the female gametes egg cell is significantly larger than the male gamete sperm and is non-motile. Right student, the larger gamete or the egg cell is non-motile, the smaller gamete or the sperm is motile. The last type of the gametic difference, right, egg and the sperm is often designated as the oogamie, right? So this is basically the difference between the oogamie and the heterogamie. So now students, with hope so कि आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की टाइप समझ में आ गई होंगी। आज का लेक्चर हमारा टोटली बेस करता था टाइप्स ऑफ द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन द प्लांट्स, राइट? सो टाइप्स ऑफ द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन द प्लांट्स कितनी तरह की होती है? 4 डिफरेंट तरह की होती है, आइसोगेमी, एनाइसोगेमी, oogamie एंड द heterogamy. इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू?
आइसोगेमी में होमोगैमीट्स बनते हैं और जबकि हीट्रोगेमी में डिफरेंट तरह के हीट्रोगैमीट्स बनते हैं। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? आप लोगों ने एक बात और भी अच्छे से माइंड में रखनी है कि प्लांट्स में दो तरह की रिप्रोडक्शन होती है, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेजिटेटिव पार्ट्स इन्वॉल्व होते हैं, जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में रिप्रोडक्टिव पार्ट इन्वॉल्व होता है। एंड द वेजिटेटिव पार्ट ऑफ द प्लांट आर स्टेम, रूट्स, लीव्स, राइट, ब्रांचेस, उसके बल्ब्स और ट्यूबर्स वगैरह, ये सब क्या है? वेजिटेटिव पार्ट ऑफ द प्लांट्स है। जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, यस, वेरी गुड आंसर, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फ्लावर इन्वॉल्व होता है, बिकॉज फ्लावर इज द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द प्लांट, राइट स्टूडेंट्स। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो डिफरेंट तरह के पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, मेल एंड द फीमेल पेरेंट्स। मेल is able to produce the male gametes, female is able to produce the female gametes. Fusion of gametes takes place. This process is called the fertilization. Before the fertilization, pollination also takes place. Pollination होती है, फिर fertilization होती है। fertilization के बाद again development का process start हो जाता है और इस तरह से seed produce होता है। seed is actually the baby plant which having the ability to produce or convert it into the new plant. राइट, सीड को हम जमीन में इन्वर्ट कर देते हैं और वो इस तरीके से एक न्यू प्लांट प्रोड्यूस कर देता है। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? विद होप कि आज का लेक्चर आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इज देयर एनी क्वेश्चन, इज देयर एनी क्वेरी? सो यू मस्ट हैव टू आस्क फ्रॉम मी, यू मस्ट हैव टू कमेंट मी, ईमेल मी, और you must have to text window me in my chat box. So definitely I will give you the answer of your each and every query. With hope so you have all understand with the today's topics. Right students, thank you so much for listening me. This is Miss Sabeen Zahoor, plants pathologist. Thank you for listening me. Have a wonderful day. Good luck. Allah Hafiz to all of you.